शुक्रिया बाबा जी। बाबा जी, जैसे कैटरपिलर कीड़ा होता है और वो फिर धीरे धीरे पत्ते खाता है बहुत सारे और फिर मोटा हो जाता है और उसके बाद फिर खा खा के थक जाता है। फिर उसके बाद उसके ऊपर कोकून बनना शुरू होता है। फिर वो संघर्ष करता है बाहर आने के लिए। मुझे भी कुछ ऐसे ही फील होता नहीं बेटा, आप क्यों इन चीजों में पड़ती हैं? देखो, मालिक ने हर एक को अलग अलग बनाया है और हर एक में अलग ताकत है, अलग कमजोरी है। हम अपनी ताकतों को देखें, अपनी कमजोरियों को देखो, दूसरों को हम क्यों देखते हैं? बेटा, खूबसूरती अंदर की चाहिए, बाहर की 2 दिन का चाव है, खत्म हो जाती है। जो अच्छा इंसान है, जो अपने असूलों पे चलता है, वो सही खूबसूरती है। हम शक्लों को देख के चल पड़ते हैं बेटा। हजूर फरमाया करते थे ना, शक्लों का चाव है, एक्सीडेंट हो जाए अपने बाल बच्चे देखना गवारा नहीं करते। तो क्या फायदा ऐसी चीज का बेटा? तो आप कहते थे हॉस्पिटल में जाके बीमारों को देख देख लो, किसी को अपनी सेहत का अहंकार है तो हॉस्पिटल में देखो कैसे तड़फ रहे हैं। सो बेटा, सही चीज की पहचान करके उसके साथ अपने आप को जोड़ो। ये सुपरफिशियल चीजें हैं, क्या फर्क पड़ता है? ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਿਆਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਆ ਕਿ ਸੰਗਤ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਰੀਏ। नहीं बेटा, प्यार ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਾਇਰਾ ਹੈਗੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿਆਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੂਗਾ ਕਿ ਪਿਆਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇਣਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜੂਨੀ ਸਾਹਿਬਾਂ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਉਹ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਵੀ ਅਵਤਾਰ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੁ ਭੇਦ ਖੋਲ੍ਹੋ ਪਲੀਜ਼, ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ, ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੂਜਣ ਦੀ। ਆਪਾਂ ਬੇਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਡੁੱਬਦੇ ਨੂੰ ਤਿਨਕੇ ਦਾ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਆਸਥਾ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮਿਲੂਗਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੂਗਾ। ਸੋ ਜੇ ਸਾਡੀ ਕਰਨੀ ਸਹੀ ਹੋਊਗੀ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਬੇਟਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਉੱਤੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਨੀਚੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਿਰਨਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਰਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ, ਸੂਰਜ ਕਿਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਤੋ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਬਣਾਤਾ। ਗਿਆਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਨੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਣਾਤਾ, ਸਫ਼ਰ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਬਣਾਤਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਬਣਾਤਾ, ਮਗਰ ਤਾਕਤ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਿਰਫ ਬੇਟਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹੀ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਵੈਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਆਏ ਆ ਬੇਟਾ, ਮਗਰ ਉਹ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਸ ਇੱਕ ਮਾਲਿਕ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਤੇ ਆਣਾ ਤੇ ਜੇ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਹੋਏ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਆਪ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਹਿਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮਕਾਜ 'ਚ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਹਤਾਜ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਸ਼ਰੀਫ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ?
ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਆਪਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਬੋਝ ਹਲਕਾ ਹੋਊਗਾ ਬੇਟਾ। ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਗਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬੋਝ ਵਧੂਗਾ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੈ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ। ਆਪਾਂ ਕਾਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੋਝ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ, ਇਹੀ ਮਨ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਨਾ, ਮਨ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਂ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਬੇਟਾ। ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਮਨ 'ਚ। ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਚਪਨ 'ਚ ਇਹੀ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਛਾਈ ਕਰ ਔਰ ਕੁएं में डाल। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪਰਖ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਛਾਈ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਣਾ ਬੇਟਾ। Baba ji, my question is, how can I achieve Sahaj and can be in peace forever? Beta, Sahaj will come when the mind is in control. Till the mind is not in our control, there will always be turbulence. So, the objective of meditation and the spiritual path is to control the mind. And when the mind is in control, then you can channelize it whichever way you want to. Today, we are following the dictates of the mind. So this is the purpose, that we control the mind and channelize it towards the objective we have put in front of us. Yes, Baba ji. हमको बहुत मन चिंता रहती है, रात को नींद नहीं आती, मन भयभीत रहता है, तो हमारे पर कृपा कीजिए और मुझे नाम दाम दीजिए तो मन शांत रहे और कृपा रहे आपकी। और हम फिर से आए, हम फर्स्ट टाइम आए हैं, बहुत अद्भुत अनुभव हुआ है, तो कृपा कीजिए हमारे पर। बेटा, मन को शांत हमने ही किया है, किसी और चीज़ ने तो नहीं किया। ये हमारी इच्छा, हमारी चाहत, इसी ने तो मन को ऐसी अवस्था में पहुंचा दिया बेटा। तो इंसान सोचता है कि अगर ये जो इसकी चाहत है वो पूरी हो जाए तो मन को तृप्त आएगी। ये इसकी गलत फहमी है। मन तो एक अंधा कुआं है, जितना इसको दोगे उतनी इसकी मांग बढ़ेगी। कि जब तक अपनी विचारधारा हम सही नहीं करेंगे, अब एक तरफ तो ज़रूरत है और दूसरी तरफ चाहत है। अब ज़रूरत के लिए तो मालिक ने बहुत कुछ दिया है, चाहत कभी पूरी नहीं हो सकती। सो इसलिए बेटा, अपनी विचारधारा हमने, अगर मालिक ने यहाँ तक पहुँचाया है, बख्शिश की है, तो आगे भी करेगा। मगर इंसान की फितरत है, जब इसको ज़्यादा मिलता है इसका फिक्र बढ़ता है। जिसके पास कम है ना, वो कम फिक्र करता है। हालांकि अगर मालिक ने ज़्यादा दिया है तो हमें तो उसका शुक्र करना चाहिए, मगर शुक्र करने के बजाय हमारी चिंता बढ़ जाती है। सो पहले अपने मन को सही सोच विचार पे लाएं, उसके साथ अंदर तृप्त आएगी। Radha Swami Babaji, extremely thankful and grateful. I have a question. Society creates some boxes for us and they want us to fit in those boxes. If we want to walk out of the boxes, and they also term it as nature's want. If we want to walk out of those boxes and lead our life with truth, what is advisable? To live a life of lie and be in those boxes, or live a life of truth and be on your own? Beta, I think everybody has a right to live by what they think is right. Okay? I don't think so anybody has a right to put pressure on us. Having said that, we should make life objective also. You know, whatever we do, it should take us to some logical conclusion. Now, what has happened is, over a period of time, we have started thinking that the sensual pleasures or all this will give us more satisfaction. You know, we think that it's a means of happiness and a means of contentment and all that. So as long as you are objective, I have absolutely no issue with anything. You don't have to live by anyone's rules. You make your rules. Okay? But be objective.
My question is, so most people that come here worship you. They see you as their God, but you're the master. And No, then, I'm no God, beta. yes. You see, we are searching for the truth. Now, truth is eternal. Truth can't change. Anything which changes is part of Maya. I, Jai, so Maya. Does the body change? Body is constantly changing. And the limit of this body is the cremation ground. It can't go beyond that. You see, so as I said earlier, that the body is just to show us. It's a means, it is not the end. Now, in our love, sometimes we say, you are everything for me, you are this, that, and all. But that doesn't change anything. Now, if he was to come in the human, then there would be so many gods. Okay? But every religion says that there is only one. So, the human is just a means to teach you. What we are seeking is that one. Ik ekka. राधा स्वामी बाबा जी, मेरा सवाल है कि जब हम माता पिता की सेवा करते हैं, उनके हाथ पैर दबाते हैं, तो क्या हमारे कर्म कट जाते हैं और उनके बढ़ जाते हैं? नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता। देखो, मालिक के बाद तो माँ बाप ही होते हैं। माँ बाप के आशीर्वाद में बड़ी बरकत होती है, मगर हमने कभी भी कुछ गिनती के साथ नहीं करना। हम सारी उम्र लगे रहे ना, फिर भी जो माँ बाप की देन है वो पूरी नहीं कर पाएंगे। सो अपने तरफ से तो जितनी सेवा करेंगे उतनी कम है। जी बाबा जी, थैंक यू। बाबा जी, इस वक्त दुनिया में माया मोह का इतना प्रवेश हो गया है कि एक दूसरे की जान पहचान, एक दूसरे का इज्जत मान सारा खत्म हो गया। तो बाबा जी, आप यहाँ से ऐसा संदेश दुनिया को दे दें जिससे कुछ दुनिया में इसका असर जो है ये कम हो। नहीं बेटा, ऐसे थोड़ी होगा। देखो, पढ़ने से सुनने से कुछ नहीं होने लगा। अगर ऐसे होता तो अब तक दुनिया बदल जानी चाहिए थी। अब ग्रंथों पोथों की तो कोई कमी नहीं है, संतों महात्माओं की तो कोई कमी नहीं है। मगर बेटा, जब तक इन चीज़ों को अपने अंदर अनुभव नहीं करेंगे ना, वो विश्वास नहीं बनता। बाहर से सुनते हैं तो मन में एक ख्याल सा पैदा हो जाता है, मगर उसमें भरम कितना है, सच कितना है, उसका एहसास तो तभी होगा जब हम उसका अनुभव करेंगे। सो बेटा, जब तक अंदर से विश्वास नहीं होगा, एक कान से सुनेंगे, दूसरे कान से निकाल लेंगे। अब हम कह देते हैं कि भाई माया बुरी है, ये बुरा है, वो बुरा है। बुरी हमारी सोच उसको बना देती है। अब पैसे के बगैर तो जिंदगी भी नहीं हम गुजार सकते, मगर वो पैसा कैसे कमाना है, ठीक है ना, गलत जरिए से कमाएंगे तो पैसे में बुराई नहीं है, बुराई तो हमारी नीयत में है ना। अब हम कई बार औरत को बुरा कह देते हैं। अब औरत बुरी नहीं है, बुराई आपकी आंखों में है कि किस लहजे से आप उनको देखते हैं। उसको माँ की लहजे से देखेंगे, बहन के लहजे से देखेंगे, उसका ओहदा बहुत ऊपर चले जाता है। आपकी नज़र में बुराई है, आप जिम्मेवारी नहीं उठाते, उसको बुरा कह देंगे। सो बेटा, जब तक अपना नजरिया नहीं ठीक करेंगे ना, तो ये चीजें तो चलती जाएंगी बेटा। बाबा जी, मेरी मम्मी हमेशा कहती है कि सब्र का फल हमेशा मिलता है, तो ये सच है? बेटा देखो, जो किस्मत में लिखा है वो तो जरूर मिलेगा, जो किस्मत में नहीं लिखा दुनिया की कोई ताकत नहीं दे सकती। हम जल्दबाजी में ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, संभालने की ताकत नहीं है। अब आप छोटे बच्चा कहे कि मेरे को गाड़ी की चाबी दे दो, आप देंगे क्या? आपको मालूम है कि वो नहीं संभाल पाएगा, कोई एक्सीडेंट हो जाएगा। सो सब्र करेंगे, बड़ा हो जाएगा, आप बड़ी खुशी से देंगे। तो जिंदगी में हम मांगेंगे तो पता नहीं संभाल पाएंगे या नहीं। जब मालिक देगा वो उसी वक्त देगा जब उसको मालूम है कि ये उसको संभाल पाएंगे, तो हम क्यों मांगे? बाबा जी, मेरा प्रश्न ये है
कि आप जी ने कई बार फरमाया कि जो मालिक हमारे लिए करता है, हमारी ज़िंदगी में हमारे लिए बनाता है, वो हमारी बेहतरी के लिए होता है और इस चीज़ का हमें हमेशा शुक्र मानना चाहिए। वो हमारे हिसाब से सही हो, गलत हो, हमें उसकी पहचान नहीं है। अच्छा बाबा जी, मैं ये पूछना चाह रहा था कि एक परिवार का, एक घर का टूटना, एक परिवार का अलग होना कैसे अच्छा होता है? ये अगर ऐसा होता है तो इसमें हमारे लिए शुक्र कैसे हम माने? इतनी चीजें होने के वजह से इतनी उथल पुथल मची हुई रहती है मन में और मस्तिष्क में कि हम भजन सिमरन पे बैठ ही नहीं पा रहा और वो ध्यान बार बार मेरा विचलित हो जाता है, मैं ध्यान नहीं जुड़ा पा रहा हूँ और जिस वजह से ये सारी चीजें हो रही है उस वजह से मैं शुक्राना भी मेरे मन से, दिल से नहीं आ पाता है। ऐसा क्या करूं और ऐसा क्या करना चाहिए? इसको मैं कैसे निवारूं इस चीज को? बेटा हमारा दायरा बहुत छोटा है और हमारा जो नजरिया है ना, हम सिर्फ हर एक चीज को अपनी तरफ से देखते हैं, हम दूसरों की तरफ से नहीं देखते। आप जिंदगी में क्या आप सारी दुनिया को बदल सकते हैं? हर एक का अपना नजरिया होगा और हर एक वही चाहेगा कि जो मैं समझता हूं या मेरी सोच है वैसे चलना चाहिए। अब एक हाथ से ताली बजा सकते हैं, दो हाथ चाहिए ना। तो लड़ाई झगड़ा भी जब सब उसके बीच में कूद पड़ते हैं तभी तो लड़ाई झगड़ा होता है। अगर एक इंसान चुप कर जाए और हाथ जोड़कर चले तो उसका निपटारा भी हो सकता है बेटा। मगर आजकल के दौर में हर एक को अपना हक चाहिए। अब असल में हमारा क्या हक है? सब कुछ तो मालिक का दिया हुआ है। तो हमारा ये जो अंग्रेजी में कहते हैं व्हाट अबाउट व्हाट आई वांट, कि जो मैं चाहता। तो पहले जमाने में परिवार इकट्ठे होते थे, इकट्ठे चलते थे, तो वो एक ताकत होती थी। आजकल इतने हम स्वार्थी हो गए हैं कि हर एक इंसान अपना देखता है कि मेरा फायदा या मेरा नुकसान किस में है। तो उसमें फिर ऐसी अवस्था आ जाती है कि एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा। बच्चे जब बड़े होने शुरू हो जाते हैं, माँ बाप सोचते हैं कि मैं अपने बच्चों की देखूं और दूसरे की तरफ नहीं ध्यान दें। सो बेटा ये तो दुनिया सारी ऐसी बन रही है, मगर हम उसके हुक्म में रहेंगे तो फिर उसकी जिम्मेवारी है। हम अपनी मनमर्जी करेंगे तो उसका बोझ हमें उठाना पड़ेगा। अब इस वक्त हमें बुरा लगता है, मगर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तब हमें आहिस्ता आहिस्ता एहसास होगा कि मालिक तो जो भी करेगा सही करेगा, उसमें कोई ना कोई कहीं ना कहीं जरूर हमारा फायदा है। बाबा जी जिवें हुणे सारियां गल्लां याद रहिंदियां पर घर जाके असीं भुल जाने आ। माँ बाप ਦਾ ਨਾਂ ਕਦੇ ਭੁੱਲेंगे? नहीं। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਨ ਕਦੇ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਨਸਾਨ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਬੇਟਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ। ਬੇਟਾ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਭੁੱਲਣਾ ਉਹਨੂੰ। ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੋੜ ਹੈ। बाबा जी, जो 24 साल या 25 साल के बच्चे हैं उनको नशे से या गलत कामों से कैसे बचना चाहिए? बेटा देखो आजकल का इंसान बड़ा स्वार्थी है, हर एक चीज गिनती लेता है। आपके घर में कोई आए, अगर आप सोचते हैं कि वो आपके किसी काम आ सकता है, आप उसको अंदर बुलाएंगे, चाय पूछेंगे, और अगर आपको हो कि मेरा कोई काम नहीं तो पानी का गिलास नहीं इंसान पूछता बेटा। तो वही गिनती को इस्तेमाल करके कि इनके साथ एक तरफ तो हम कहते हैं जी हमें आज़ादी चाहिए और दूसरी तरफ हम इनको लेके सब चीज़ों के मोहताज हो जाते हैं बेटा। तो इसमें हमारा कैसा भला होगा? अगर मैं अपने वो नशा करके अपना होशो हवाश को बैठता हूं तो मैं तो फिर उस चीज का गुलाम बन जाऊंगा ना आहिस्ता आहिस्ता। तो उसमें मेरा भला कैसे हुआ? पैसा भी खर्चा, अपनी आजादी भी खो दी, गुलामी भी हासिल कर ली, तो हासिल क्या किया मैंने?
ये तो बेटा आहिस्ता आहिस्ता ये तो जहर है, इंसान को खत्म कर देता है। तो एक तरफ तो हम मन को काबू करने में लगे हुए हैं और दूसरी तरफ हम इन चीजों को लेकर वो जितना बेकाबू है उससे भी आगे वो बढ़ जाता है बेटा। सोच समझ के तो कदम उठाना चाहिए ना।